नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत आज द ग्लोबल गवर्नेंस वी नीड थीम पर आधारित प्लेनरी पैनल डिस्कशन में प्रतिभाग करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह आईएएस ने कहा कि नागरिकों के अधिकार व भलाई सभी देशों के सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी राष्ट्र प्रमुखों का आह्वान किया कि विश्व मानवता की भलाई एवं वैश्विक मुद्दों के समाधान हेतु एक साझा मंच पर एकजुट हों। श्री सिंह ने विश्व पटल पर भारत के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि हमने अपने संविधान की भावनाओं के अनुरूप सभी सहयोगी देशों के साथ सदैव सकारात्मक भूमिका निभाई है, तथापि वैश्विक मुद्दों पर अब हम बड़ी जिम्मेदारी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सम्मेलन की प्रशंसा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया के सभी लोगों के हित के लिए है। पैनल डिस्कशन में हंगरी की पूर्व राष्ट्रपति सुश्री कैटलीना नोवाक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया एवं हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में लैंगिक असमानता को दूर करने पर जोरदार वकालत की। I'm very honored to say that we have the Honorable Mr. Justice Dr. Adil Omar Sharif. He is the first Deputy Chief Justice of the Supreme Constitutional Court of Egypt, and Sir has been a very regular attendee at this conference and a great support for the values and principles for which this conference stands. सर डॉक्टर जस्टिस आदिल उमर शरीफ ये इजिप्ट राष्ट्र के, मिस्र राष्ट्र के सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फर्स्ट डेप्यूटी चीफ जस्टिस हैं और ये हमारे कॉन्फ्रेंस में कई सालों से आ रहे हैं लगातार और बहुत ही समर्थक हैं उन विचारों के जिनके लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। This conference is a momentous event that's been running for 25 years without interruption. And it's a platform for judges from all over the world to come to India, and wherein they have the opportunity not only to meet with their counterparts in India, but also to exchange and explore solutions for common crises and common problems that we are all facing in their respective jurisdictions. So, and the conference was initiated at first place by the visionary Jagdish Gandhi, reflecting his vision on global peace and what can be done for this world at large to live in peace and harmony and benefit our future generations. So all topics or all themes that attract us as judges are discussed here under the umbrella of City Montessori School, wherein we look into whatever conflicts, problems going on in this world, and definitely influenced very much by Article 51 of the Indian Constitution that states clearly that whatever conflicts in this world should be dealt with in a peaceful manner through means of confrontation and arbitration at the end of the day. So this understanding to achieve and arrive at peaceful arrangements that benefit the whole humanity is the core issue and the core subject that we discussed here at this conference. And this year in particular, the conference has really got into more focus on global peace and what can be done to restructure the governance system of the world today
moving from whatever governance system we're having now that seems to be insufficient to a more productive one that really would be reflected on the peace security throughout the world to the extent that benefit future generations. Thank you. जैसे कि आपने कहा कि इस सम्मेलन का जो मुख्य जो थीम है वो है एक गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए कौन सी या कैसी विश्व व्यवस्था हमें चाहिए जिससे कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध समाज का विकास किया जा सके। जैसा कि आपको पता ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो देशों के जो एक दूसरे से संबंध है उसको संचालित करता है। उसका जो संविधान है जिसको चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहते हैं वो 1945 में लिखा गया था। अब 80 साल होने आए हैं लेकिन उसके अंदर कोई संशोधन नहीं हुआ है, जबकि समाज जो है विश्व में बहुत बदलाव आया है, नई नई समस्याएं आई हैं, लेकिन उसी संविधान के अंतर्गत जो है वो विश्व की व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो अच्छे से व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। तो प्रश्न ये है जो इस कॉन्फ्रेंस में जिस पे चर्चा हो रही है कि विश्व की व्यवस्था आगे चल के भविष्य के लिए कैसी हो जिससे कि बच्चों के लिए एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सके। और आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान में कितनी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, भीषण लड़ाइयाँ चल रही हैं, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स को यूज करने का भी प्रयोग करने की भी बात चल रही है। तो एक ऐसे असुरक्षित समाज में, संसार में हम रह रहे हैं। बात है इसके लिए हम सिर्फ ये ना सोचें कि भाई ये हमारे लीडर्स जो हैं वो करेंगे। हर एक जने को अपने स्तर पे सोचना है कि हमारा योगदान क्या हो सकता है। तो इसी तरीके से जो विश्व की जो जुडिशरी है, जो लीगल क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी सोचना है कि उनका इस मुहिम में योगदान क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। एक सक्रिय योगदान जो अपने अपने देशों में जा करके यहाँ से कहते हैं कि प्रेरित होकर के वापस जा करके अपने अपने देशों में एक विचारों का एक वातावरण बनाना, एक विचारों का ऐसा वातावरण बनाना जो जिससे कि हर एक समाज में, हर एक देश में एक ये विचार उपजे कि हमें विश्व की व्यवस्था को और अच्छा बनाना है। क्योंकि विश्व जब हम हमारे जो लीडर्स हैं सभी देशों के जब अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में जाते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो जाकर के सिर्फ अपने ही देश के के लिए जो है वो अपनी बात कहते हैं कि हमारा देश समृद्ध कैसे बन जाए, हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ जाए, हमारे देश में जो है प्रगति कैसे हो। लेकिन आवश्यकता अब ये हो गई है शायद कि अगर हमें एकजुट होकर के काम करना है, क्योंकि जो विश्व की जो समस्याएं हैं वो ऐसी नहीं है कि अगर हम हर एक जना अपने अपने देश की समस्याओं के बारे में ही सिर्फ बात करेगा, औरों के जो समस्याएं हैं जिससे हमें भी नुकसान पहुंच सकता है उसके बारे में बात नहीं करेगा, तो ये एक बहुत ही विजडम वाली बात नहीं होगी, ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। जैसे आपने देखा कि कोविड का जो वायरस था किसी और देश से शुरू हुआ, लेकिन उसने कितना कितना विनाश किया पूरी दुनिया में। तो दुनिया के सारे देश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। तो ऐसे समाज में जहाँ पर हम लोग बेहद जुड़े हुए हैं, जैसे कि मोदी जी ने G20 समिट में जो अपना थीम चूज किया था वो क्या था? एक वसुधा, एक कुटुंब, एक भविष्य। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में है, तो उसको विश्व स्तर पर एक्चुअली लागू करने के लिए, वास्तव में लागू करने की आवश्यकता है। उसको सिर्फ बात करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस पे बात करने से बस काम बन जाएगा। उस पे हर एक देश को अमल करना पड़ेगा। पूरे विश्व को एक परिवार मान के अगर चलेंगे तो हम जैसे संयुक्त राष्ट्र जैसे फोरम में सिर्फ अपने देश की ही बात नहीं करेंगे, हम पूरे विश्व की बात करेंगे कि पूरे विश्व का भला कैसे हो, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे देश का भी भला उसी में निहित है जो विश्व के लिए अच्छा है। मिडिल ईस्ट से कौन कौन सा डेलीगेशन आया, कौन कौन से प्राइवेट आए, क्योंकि इन दिनों मिडिल ईस्ट के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, तो क्या वहाँ पर जो वहाँ से लोग आए हैं उनसे क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ? सऊदी अरेबिया से लोग आए हैं जो यहाँ पर हैं, लेबनान से आए हैं, और इस बार जो है वो इसराइल से इस बार नहीं आए हैं। पूर्व वर्षों में आते रहे हैं इसराइल के जजेस भी। टर्की से आते हैं हमारे यहाँ जजेस, इस साल टर्की से नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट हर साल टर्की से आए हैं।
तो मिडिल ईस्ट के कई देशों से लोग आए हैं। जो किंगडम ऑफ कतर है वहाँ से भी जजेस आए हैं। आप कुछ प्रश्न हमारे और देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर आकर के देखिए, सबसे पहले तो वो ही जज आते हैं जो इस यहाँ की जो थीम है उससे कुछ जुड़ाव रखते हैं। जो थीम है कि विश्व की व्यवस्था क्या हो, ठीक है। वैसे तो हर एक जज जो आते हैं वो अपने अपने ज्यूरिसडिक्शंस में उनके जो भी मुद्दे होते हैं उन पे वो काम करते हैं। जैसे कोई फैमिली कोर्ट के जज हैं, कोई जो है वो हाई कोर्ट के जज हैं जो जहाँ पर हर तरीके का मुद्दा आ सकता है, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जहाँ पर हर तरीके का मुद्दा आ सकता है, कोई अपील कोर्ट के जज हैं, और दलवीर भंडारी जी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो हैं जज हैं, जो भारत के नामित वहाँ पर जज हैं। तो हर जज जो है वो अपने परिप्रेक्ष्य से अपने अनुभव ले करके आते हैं और उसके आधार पर वो यहाँ पर बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल ने उनको कुछ बताया कि आप इस तरीके से सोचिए। हम तो एक मंच प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसपे वो आकर के अपनी बात कहते हैं। It's the greatest honor of our conference and of our school that we have amongst us His Excellency Mr. Jean-Henri Sion, former Prime Minister of the Republic of Haiti. It's in Central America. Haiti is a republic in Central America, and its former Prime Minister Jean-Henri Sion is here, and he has been coming to our conference. I think, sir, this is the fifth time that sir has come. So he is greatly connected to the themes for which this conference stands. Would you like to please say something about what this conference means to you and what? Henry Sion, but she did it well. For me, and I was the Prime Minister of Haiti, and since 2019, I come every year in the conference because I think it's a good thing for a country like Haiti. I learned a lot of things, and I would love to see my country acting like that. And I would love to have this lady and the group, the collaborators of Mrs. Guerra Ganzi to work with us in Haiti to have that kind of conference on non-violence and peace and United Nations. And I think they are making a very good job. It's why they changed the government in my country. I had to be there with the new Prime Minister, but I told him I can't stay because I have a family waiting for me in जिस तरीके की शांति की बात और किस तरीके की व्यवस्था हो जिससे कि अमन और शांति आए, कि उस तरीके की इसी तरीके की कॉन्फ्रेंस हेटी में भी ये कराना चाहते हैं। This is a very wonderful thing that you just said, that you would also like a conference on these sorts of things in Haiti. Thank you. फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें LR न्यूज।